Hello and very good evening to all the students. And during this pandemic time, I think you will be happy and healthy wherever you will be. Okay, so without any further delay, let's start our English dictation. And today we are going to write about uses of plants. Okay, so let's begin our English dictation. So write it down. We use flowers and trees. We use flowers and trees. We use flowers and trees. You can call it flowers or flowers. Okay, we use flowers and trees such as lily, rose, jasmine and sandalwood. We use flowers and trees such as lily, rose, jasmine and sandalwood to make perfumes. Full stop. To make perfumes. Full stop. Again, I am repeating. We use flowers and trees such as lily, rose, jasmine and sandalwood to make perfumes. Full stop. We also use yes, write it down. We also use different parts. We also use different parts. We also use different parts of trees such as we also use different parts of trees such as okay, write it down. We also use different parts of trees such as sandalwood and sunflower sandalwood and sunflower to make oils. Full stop. We also use different parts of trees such as sandalwood and sunflower to make oils. Full stop. Okay, write it down. We use the oil to make soaps and shampoos. We use the oil to make soaps and shampoos. Full stop. Okay, I am repeating again. We also use different parts of trees such as sandalwood and sunflower to make oils. Full stop. Sandalwood and sunflower to make oils. Full stop. We use the oil to make soaps and shampoos. Okay, we use the oil to make soaps and shampoos. Full stop. And today's last line will be we use
we also use the oil. We also use the oil to cook our food. Full stop. We use the oil to make soaps and shampoos. Full stop. And last line is, we also use the oil to cook our food. Full stop. Okay students, now here we have finished our English dictation and now we will tally it. Okay, so please tally your dictation. We use flowers and trees such as lily, rose, jasmine and sandalwood to make perfumes. Full stop. We also use different parts of trees such as sandalwood and sunflower to make oil. Full stop. To make oils. Full stop. We use the oil to make soaps and shampoos. Full stop. We also use the oil to cook our food. Full stop. Okay students, now here we have finished our English dictation and now we will proceed to write Hindi dictation. Okay, so please open your Hindi copy and now we will start Hindi dictation. तो कल हम लोग ने हिंदी के डिक्टेशन में एक स्टोरी कवर करी थी जो कि एक नटखट चूहे के ऊपर थी और उसमें जो लास्ट लाइन लिखी थी वो थी कपड़े का टुकड़ा दे दिया. ठीक है, तो आज हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे. तो आप लोग भी स्टोरी लिखें और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड आई होप दैट यू विल बी एंजॉयड. ओके, सो राइट इट डाउन. तो आप लोग लिखें, कपड़ा लेकर चूहा. लिखिए, कपड़ा लेकर चूहा. कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता. कपड़ा लेकर चूहा उछलता, उछलता के बाद डैश लगाएंगे, कूदता. कपड़ा लेकर चूहा उछलता डैश कूदता दुकान से बाहर निकल गया. पूर्ण विराम. दुकान से बाहर निकल गया. पूर्ण विराम. कपड़ा लेकर चूहा उछलता डैश कूदता दुकान से बाहर निकल गया. पूर्ण विराम. दुकान से बाहर निकल गया. पूर्ण विराम. और आगे लिखिए, फिर वह एक दर्जी. फिर वह एक दर्जी. फिर वह एक दर्जी. फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा. पूर्ण विराम. फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा. पूर्ण विराम. आराम से लिखें आप लोग. फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा. पूर्ण विराम. आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा. एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग टैली करें. फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा. पूर्ण विराम. चूहे ने कहा डैश. चूहे ने कहा डैश दर्जी जी. चूहे ने कहा डैश दर्जी जी, कॉमा, मुझे तुमसे कुछ काम है. पूर्ण विराम. चूहे ने कहा डैश दर्जी जी, कॉमा, मुझे तुमसे कुछ काम है. पूर्ण विराम. मुझे तुमसे कुछ काम है. पूर्ण विराम. आगे लिखिए, काम. हाँ लिखिए काम. काम के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क बनाएंगे. लिखिए काम एक्सक्लेमेशन मार्क. क्या काम? क्वेश्चन मार्क. क्योंकि यहाँ पर दर्जी थोड़ा सा चौंक गया है कि चूहे को क्या काम हो सकता है मुझसे, तो उसका ये रिएक्शन है.
मुझे तुमसे कुछ काम है, पूर्ण विराम। काम एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या काम, क्वेश्चन मार्क। दर्जी ने गुस्से से पूछा, पूर्ण विराम। 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 और आज के डिक्टेशन की कुछ लास्ट लाइंस रहेंगी जिसे आप लोग लिखें। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा डैश। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया। हाँ लिखिए, चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा डैश। कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो, पूर्ण विराम। कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो, पूर्ण विराम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना हिंदी का भी डिक्टेशन फिनिश कर लिया और अब हम लोग अपने डिक्टेशन को एक बार टैली करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी टैली करें। कपड़ा लेकर चूहा उछलता डैश कूदता दुकान से बाहर निकल गया, पूर्ण विराम। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा, पूर्ण विराम। चूहे ने कहा डैश, दर्जी जी कौमा, मुझे तुमसे कुछ काम है, पूर्ण विराम। काम एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या काम, क्वेश्चन मार्क। डैश, दर्जी ने गुस्से से पूछा, पूर्ण विराम। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा डैश, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो, पूर्ण विराम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही डिक्टेशन फिनिश कर लिया है और जो भी हमने बोला है वो आपको हमेशा की तरह वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अपने डिक्टेशन को टैली करें। ओके, और जो भी मिस्टेक्स हो कोशिश करें उन्हें अपने आप से ही एटलीस्ट 5 टाइम्स जरूर लिखें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।